جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جگہ پر جا کر ایک بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر کھڑے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لڑکا یہاں پر پہنچ گیا ہے، تو وہ ہاں کہتا ہے۔ تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ وہ بچہ یہاں پر سیف نہیں ہے کیونکہ شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان اسے نہیں پکڑ سکتا، اور وہ ہے پرانا قلعہ، اور وہاں پر اسے گھوسٹ رائڈر کے علاوہ کوئی بھی سیفلی نہیں لے جا سکتا۔ لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اور دیکھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو اس بچے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ آدمی جو اس بچے کو لینے آیا تھا کافی گھبرا جاتا ہے اور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر وہ بچہ موجود تھا۔ جا کر دیکھتا ہے تو اس بچے کی ماں بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ وہ دونوں کافی ڈرے ہوئے تھے اور کسی پر بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ ماں اس آدمی کے سامنے اپنی گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اور ہمیں بھی جانے دو، اور اسی کے ساتھ کسی طرح وہ گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، لیکن انہی کے پیچھے وہ لوگ بھی تھے جو اس بچے کو لینے آئے تھے۔ اب جیسا کہ اس آدمی کی بائک ان کڈنیپرز کے آگے تھی تو وہ کڈنیپرز اس پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بائک کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ لیکن گرتے گرتے وہ بھی ان لوگوں پر شوٹ کرتا ہے، جس سے ان کی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ لیکن لکیلی اس آدمی کی جان بچ گئی تھی کیونکہ وہ پہاڑ سے نیچے گرنے کے بعد ایک درخت میں اٹک گیا تھا، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ماں اور بچہ سیفلی ڈرائیو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جو بچ گیا تھا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بہت پرانا گھر تھا جو کہ کافی سنسان لگ رہا تھا۔ وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو یہاں پر جونی ہوتا ہے جو کہ پارٹ 1 کا مین کریکٹر اور گھوسٹ رائڈر تھا۔ وہ اپنے گھر سے کئی میل دور یہاں پر ہی رہ رہا تھا۔ اس نے پچھلے 8 سال سے اپنے گھوسٹ رائڈر ہونے کی پاورز کو نہیں یوز کیا تھا۔ وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہی وہ اسے اسی بچے کی پکچر یعنی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اسے بچانا ہوگا اور اس کے بدلے میں جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ گھوسٹ رائڈر حیران ہو کر کہتا ہے کہ بھلا میں کیا چاہوں گا؟ وہ اسے کہتا ہے کہ تم بھی چاہتے ہو، تم اس قرض سے آزاد ہونا چاہتے ہو، صرف آج رات گھوسٹ رائڈر بن جاؤ اور دیکھنا اس کے بعد تم اس چیز سے مکمل آزاد ہو جاؤ گے اور کبھی گھوسٹ رائڈر نہیں بنو گے جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ جونی خوشی خوشی مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اب تھک چکا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ گھوسٹ رائڈر بن کر اس بچے کی تلاش میں یعنی سرچ میں نکل جاتا ہے۔ پھر ہمیں وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جسے کیریگن نام کے ایک انسان نے پکڑ رکھا تھا، اور یہ سب وہ شیطان کے کہنے پر کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی شیطان ہے، کیونکہ اسے یہ کام کرنے کے بعد اس شیطان سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ اور تبھی گھوسٹ رائڈر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہی وہ اپنی چین سے سب کو مارنے لگتا ہے اور سیدھا اس بچے کی طرف جاتا ہے، لیکن کیریگن اور اس کے ساتھی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس بچے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلا سین جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ ایک ہاسپٹل کا ہوتا ہے جہاں پر گھوسٹ رائڈر آنکھ کھولتا ہے اور وہیں پر اس بچے کی ماں بھی موجود ہوتی ہے۔ جب یہ گھوسٹ رائڈر دیکھتا ہے تو وہ عورت وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور گھوسٹ رائڈر بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ وہ عورت غصے سے اس کی طرف گن پوائنٹ کر کے کہتی ہے، مجھے تمہاری کسی قسم کی ہیلپ نہیں چاہیے اور نہ ہی میں تم پر ٹرسٹ کرتی ہوں، تو بہتر ہے یہاں سے تم چلے جاؤ۔ جونی وہ گن اپنے ماتھے پر رکھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر نہیں ٹرسٹ تو تم مجھے مار دو اور میرا مر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین دیکھ کر وہ عورت رک جاتی ہے اور گن نیچے کر لیتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کل بھی تو تم نے میرے بیٹے کو ڈھونڈ لیا تھا، تو کیا آج بھی تم اسے ڈھونڈ لو گے؟ تو جونی کہتا ہے کہ ہاں، کل تو میں نے ڈھونڈ لیا تھا کیونکہ میں اسے فیل کر پا رہا تھا، لیکن آج میں اسے محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو وہ عورت ڈر جاتی ہے کہ کیا میرے بیٹے کو تو نہیں کچھ ہو گیا؟ تو جونی کہتا ہے کہ نہیں، پریشان مت ہو، وہ زندہ ہے لیکن میں اسے فیل نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف ہمیں وہ شیطان دکھایا جاتا ہے جو کیریگن سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کیریگن اسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقابلے میں گھوسٹ رائڈر آ کھڑا ہوگا اور اتنی مشکلیں پیدا کرے گا، تو تم مجھے اس کام کے ڈبل پیسے دو گے۔ اب شیطان اسے کہتا ہے کہ میری بات تم بچے سے کرواؤ، اور جیسے ہی وہ اس بچے کے کان کے ساتھ فون لگاتا ہے تو ہمیں شیطان کی تو آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ بچہ بہت زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیریگن
कैरिगन के पूछने पर शैतान बताता है कि बस जो भी कहा वो अब इस बच्चे को नहीं ढूंढ सकता, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वो तुम्हें फील कर सकता है और वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। और यही रीजन थी कि गोस्ट राइडर इस बच्चे को महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कैरिगन अपने लोगों के साथ उस बच्चे को लेकर निकलता है तो रास्ते में गोस्ट राइडर उसे ढूंढ लेता है और उन दोनों की बहुत फाइट होती है। उधर उस बच्चे की माँ आती है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती है। गोस्ट राइडर सबको मार देता है और फिर उस औरत के पास आता है और कहता है कि तुम में और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है और मैं उन सबको मार देता हूँ जिसने गलत काम किए होते हैं, तो इसलिए जब मैं गोस्ट राइडर बना हुआ हूँ तो मुझसे तुम दूर रहा करो, ये ना हो कि मैं तुम्हें भी मार दूं। और फिर वो उसको पकड़ लेता है तो बच्चा कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो। बच्चे के कहने पर वो उसकी माँ को छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बढ़ने से पहले ही वो बहुत अजीब फील करता है और हम ये देखते हैं कि वो अब जॉनी में बदल चुका है। अगले दिन जब ये तीनों बैठे होते हैं तो वो माँ जॉनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो जॉनी उससे कहता है कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो बिल्कुल प्योर हो, जहाँ पर ये बच्चा आराम से और सेफली रह सके। वो लोग अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। और जॉनी बताता है कि वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था वो भी कल से हमारे साथ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें वो आदमी भी ज्वाइन कर लेता है। फिर हमें शैतान दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आया था जहाँ पर गोस्ट राइडर ने उन सब लोगों को मार दिया था जो उस बच्चे पर अटैक करना चाहते थे। शैतान देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं और कैरिगन भी एक पत्थर के नीचे मर रहा है। वो उसके पास जाकर पूछता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ। कैरिगन कहता है कि तुम कितने मतलबी हो, देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ। तो शैतान उससे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया वो तुम मर भी रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स देता हूँ। ये कहते ही वो उसकी चेस्ट पर यानी सीने पर हाथ रखता है और कैरिगन देखते ही देखते काफी बदल जाता है और वो भी अब एक शैतान जैसा दिखने लगा था। उसके पास काफी पावर्स आ गई थी और इसके बाद वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले इस बच्चे की माँ ने एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये मर रही थी, लेकिन तभी शैतान इसके पास आया था और कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और फिर शैतान ने उसको बचा लिया था और बदले में उसका होने वाला बच्चा मांगा था। और जैसे ही बच्चा 13 साल का होगा तो शैतान एक रस्म करेगा जिसमें वो अपनी सारी की सारी पावर्स इस बच्चे में ट्रांसफर कर देगा और शैतान की सोल आने के बाद वो भी एक शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ हमें वो माँ, बच्चा, जॉनी और वो आदमी दिखाया जाता है जो कि अब उस सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा सेफ रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में जॉनी की और उस बच्चे की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं। पहले तो जॉनी खुद को कर्ज से आजाद करने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि अब उससे भी फिक्र होने लगी थी उस बच्चे की। और फिर वो जगह भी आ जाती है। जॉनी ये देखकर काफी खुश होता है। वहाँ के लोग काफी अजीब दिखाई दे रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉनी उससे पूछता है कि मेरे अंदर कौन सा जिन है या कौन सा ऐसा शैतान है जिसकी पावर्स है मेरे अंदर। वो आदमी चूंकि प्रीस्ट था यानी पादरी था तो वो उसे बताता है कि ये एक फरिश्ता था, इसका काम इंसाफ करना था, लेकिन जब इसे दोज़ख में भेज दिया गया तो इसके जिम्मे गुनहगारों को सजा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लगा दी गई और वो गोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहाँ पर उसके अंदर से गोस्ट राइडर को निकाल दिया गया है और अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था और वो काफी खुश था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उस आदमी को किसी ने पकड़ रखा है। ये वही लोग थे जिनके पास ये लोग उस बच्चे को लेकर आए थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकतें हैं और ये बच्चा हम सब के लिए खतरा है यानी डेंजर है। वो आदमी उनसे कहता है कि परेशान मत हो, ये आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, डर तो सिर्फ कल का है जब ये 13 साल का हो जाएगा। हमें सिर्फ कल के दिन ध्यान से रहना होगा क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तो फिर फ्यूचर ही बदल जाएगा और फिर कभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोग इनकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि जब तक ये जिंदा है मसला तो हमारे लिए है ना। और ये कहते ही उसे वो बाहर ले जाते हैं और उसकी गर्दन काटने ही वाले होते हैं कि कैरिगन आ जाता है। जैसा कि उसकी
उसके पास अब काफी ज्यादा पावर्स थी तो वो उन सब को जलाकर मार देता है और उस बच्चे को उठाकर शैतान के पास ले आता है। हमें वो शैतान और बच्चा दिखाई देते हैं। शैतान उससे बड़े प्यार प्यार से बातें कर रहा होता है कि देखो मैं कितना बुरा हो चुका हूँ, मेरा जिस्म अब कमजोर हो चुका है और खुद को तो देखो कितने तेज हो। तुम्हारे जिस्म में एक तरफ इंसानी ताकतें हैं और एक तरफ शैतानी ताकतें, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ इंसान है और तुम मेरे बेटे हो। फिर वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं कहाँ इन पावर्स को झेल सकूंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म इन पावर्स को लेके काफी पावरफुल हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बातों बातों में उसके अंदर अपनी सोल और पावर्स ट्रांसफर करके खुद ही स्ट्रांग होना चाह रहा था। उसके बाद वो उस बच्चे को एक इंजेक्शन लगा देता है और उस जगह पर ले आता है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस होना था। वहाँ पर सब लोग रिचुअल करने लग जाते हैं और अजीब अजीब से म्यूजिकल वर्ड्स उस बच्चे के सामने बोलने लगते हैं। वो बच्चा भी कुछ कुछ पोसेस होने लगा था, यानी कि उनके कंट्रोल में आ रहा था और वो भी वही सेम वर्ड्स बोलने लगता है। और फिर वहाँ पर वो तीनों यानी जॉनी, उस बच्चे की माँ और वो आदमी भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस किले के अंदर जाते हैं जबकि वो माँ बाहर खड़े खड़े उन लोगों को शूट कर रही होती है जो उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। वो आदमी जॉनी से कहता है कि तुम जाओ उस बच्चे को बचाओ जाकर और बाकी सबका ख्याल मैं रख लूंगा। जॉनी जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन देखता है कि ये प्रोसेस और रस्म तो पूरी होने वाली है। वो भाग कर जाता है और शैतान को पंच करता है और जोर से हिट करता है और क्योंकि शैतान काफी बुरा था इसलिए वो गिर जाता है। और फिर वो भाग कर बच्चे की तरफ जाता है और कहता है कि जल्दी आओ मेरे साथ, जल्दी से। लेकिन वो बच्चा भी उन्हीं में मगन था और वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लगा था और इसी के साथ शैतान पीछे से उठकर उसे जोर से हिट करता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो जॉनी के साथ था। वो उन सब से लड़ रहा था, लेकिन तभी कैरिगन भी आ जाता है जो कि अब शैतान था और सैडली वो उस आदमी को मार देता है। उसके बाद वो जॉनी के पास आता है, लेकिन जॉनी जल्दी से उस बच्चे से कहता है कि बेटा तुम्हारी असलियत ये नहीं है, तुम एक इंसान हो, समझो, संभालो खुद को। लेकिन वो बच्चा शैतान के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, तो जैसा बेटा आप चाहते हैं मैं वैसा ही बनूंगा। फिर वो जॉनी के पास जाता है और उसके मुंह पर अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और इससे जॉनी की गोस्ट राइडर होने की पावर्स वापिस आने लगती हैं। यहाँ पर जॉनी पूरी तरह से गोस्ट राइडर बन चुका था, लेकिन शैतान और कैरिगन उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ काफी लोग होते हैं। गोस्ट राइडर उनका पीछा करता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारने लगता है और फिर वो कैरिगन को भी जोर से मारकर शैतान के पीछे जाने लगता है। जिस गाड़ी में शैतान उस बच्चे को लेकर जा रहा था, गोस्ट राइडर अपनी चेन उस गाड़ी में फंसा देता है और उसे जोर से खींचता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी उल्ट जाती है। शैतान उस गाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है और गोस्ट राइडर भी उसके पास आ जाता है। गोस्ट राइडर उसे अपनी चेन से बांधता है और बहुत ऊपर उछाल कर उसे जोर से जमीन पर मारता है, जिसके बाद वो जमीन के अंदर जाने लगता है और यहाँ पर शैतान फाइनली मर जाता है और दोज़ख में पहुंच जाता है। इसके साथ ही उस बच्चे की माँ भागकर अपने बच्चे के पास आती है, लेकिन देखती है कि गोस्ट राइडर वहाँ पर है तो वो डर जाती है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। लेकिन गोस्ट राइडर उस बच्चे को गाड़ी से निकाल के उसकी माँ के पास पकड़ा देता है और साथ ही वो एक नॉर्मल इंसान यानी जॉनी बन जाता है और साथ ही उसके हाथ से नीले रंग की यानी ब्लू कलर की आग निकलने लगती है जो कि पहले रेड कलर की थी। वो उससे कहता है कि मैं अपने अंदर अच्छी पावर्स महसूस कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही वो उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखता है और वो होश में आ जाता है। वो बच्चा गोस्ट राइडर से पूछता है कि क्या हम जीत गए? तो गोस्ट राइडर कहता है कि हाँ बेटा हम जीत गए। इसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक पर चलता है और जहाँ जहाँ से उसकी बाइक गुजर रही थी वहाँ पर अब लाल आग की जगह नीली आग थी, यानी अब जॉनी के पास अपनी असली और अच्छी पावर्स वापस आ गई हैं और अब वो पहले की तरह इंसानों की प्रोटेक्शन यानी हिफाजत करेगा और अब वो सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी लोगों की जान बचा सकेगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।